जो जगह है ना ये मेरे लायक तो नहीं है। लाउड म्यूजिक, पार्टी एंड ऑल द प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सेट्रा टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रोड। मैं बस यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करती हूँ जस्ट टू सी व्हाट इज़ हियर एंड देन आई विल लीव। Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode. So I have arrived in Phuket. Yes, it's not called Phuket, it's Phuket. So I am currently in Phuket town और यहाँ पे ही मैं रुकूंगी 2 or 3 nights. I'm gonna be staying in Phuket town and 1 or 2 nights at Patong Beach. So in this vlog I'm gonna be exploring Phuket. But before that, let me tell you this one thing. You know, this Phuket town has this vibe कि आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचोगे ना, you will instantly fall in love with this town. This entire Phuket town is going to give you Portuguese vibe, Chinese or Portuguese mix. So Phuket town has some historical vibe. This is a place which has a lot of history and your girl is a sucker for history and stories. That's why I decided to stay in Phuket town. जितना ज़्यादा मैं यहाँ घूम रही हूँ Phuket ओल्ड टाउन में, उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। This house is upside down. ये यहाँ का रूफ होना चाहिए, वो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर एंड लुक एट दैट। यू सी एवरीथिंग बिहाइंड मी इज़ ऑल उल्टा, अपसाइड डाउन। I have come to the famous upside down house in Phuket. So yesterday when I arrived in Phuket, I bought a Phuket travel pass. So उस travel pass से मुझे बहुत सारे जगहों पे ना डिस्काउंट में एंट्री मिल जाएगी। Like the first place I have come to, it's called upside down house और यहाँ की एंट्री टिकट इज़ 590 बात और मुझे उससे डिस्काउंट मिला है। मैं प्रॉपर 2 दिनों का मैंने Phuket ट्रैवल पास लिया है। सो यू हैव टू डू नथिंग, व्हेन यू गो टू द वेबसाइट यू जस्ट बाय द पास एंड दे सेंड यू 1 QR कोड। स्कैनिंग दिस यू कैन गो टू ऑल द प्लेसेस विच एवर यू वांट टू विजिट। हर जगह पे आपको जितनी भी एंट्री प्लेसेस होंगी ना, वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। ये जगह अंदर ना बहुत मेज सा सब कुछ है, सब कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा। आई एम रेडी फॉर इट, लेट्स गेट इन। Sentence is upside down, opposite thing. Yeah, say that. Oh, I'm not wearing the underwear today. Thank you. Everything works ulta here. You know, when I came here and I saw, sorry, we are open. we are open. We are open. I was like, I'm confused. Is it closed, open? Then I realized it's upside down house. Everything has to be the other way. Good evening. What's your name? My name? Oh, My name. see, upside down. Yeah. Moa. Om. Om. Yeah. Hello, upstairs team, I'm coming. So here is the story regarding the place. Once upon a time on the bypass road, Professor Topsy-Turvy, a brilliant but eccentric scientist, dreamt of defying gravity. But when the government cut his lab fund, he was left without work or ideas until one stormy night. Determined to continue his experiment, Professor Turvy secretly borrowed equipment from his old lab. With a flash of and crash of thunder, the house was turned completely upside down. This looks so much fun. Wow. Hi, bye-bye. Hi. Bye-bye. Oh, hi and bye-bye. Good evening. Good evening. Look here, everything is upside down. ये सारे चप्पल, mirror. Hi, यहाँ मैं सीधी दिख रही हूँ. See, this is where I'm walking and look at this. It's the baby room. What is that? Chicken room. Chicken room. Chicken room. Chicken room. Chicken room. Okay. Look at the chicken room. The dining table. Here the kitchen, see the fridge. Everything upside down. The living room जहाँ पे सोफा आसमान को टच कर रहा है. Study. Co-working. Co-work. Okay, now we go down. Yes. Yeah, we are going down. हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन क्योंकि हम अपसाइड डाउन हाउस में हैं, हमको कहना है कि we are going down. Wow, this is even more fun. Tuk tuk. And dinner. Dinner.
I'll first have dinner. You want dinner? Yeah, and then I will take a ride in tuk-tuk. Okay. Yeah. पहले dinner, उसके बाद tuk-tuk ride. मज़ा है, पता है, आधा घंटा कुछ लगेगा आपको घूमने के लिए यहाँ पे, और अलग अलग तरह की टिकट है। तो ये अपसाइड डाउन म्यूज़ियम का टिकट जो है वो 590 बात और कुछ है, आधा से 1 घंटा। बट इट्स नाइस एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ जो स्टाफ है काफ़ी फ्रेंडली है। अभी यहाँ पे थोड़ा और घूमना है, लेकिन मेरे को बहुत प्यास लग रही है। पानी पीते हैं पहले। एवरीथिंग इज़ उल्टा उल्टा, द वे कॉफ़ी हैज़ बिन पुट। ये देखो पेप्सी। ये टूरिस्टी काम कर लिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो मच फन। इट्स लाइक यू फील लाइक अ चाइल्ड ऑल ओवर अगेन इनसाइड दिस। मज़ा आया। आई एम बैक टू द टाउन अगेन एंड अभी मैं लंच के लिए जा रही हूँ। मुझे ना ये ओल्ड पुकेट टाउन की वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है। फाउंड वन रेस्टोरेंट हियर, इट्स कॉल्ड थाई स्ट्रीट फूड। वैसे तो स्ट्रीट फूड बोलते हैं बट रेस्टोरेंट है वो। दिस इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग टू सर्वाइव इन थाईलैंड। ओके ओके, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे कल डिनर के लिए भी आई थी। इट्स कॉल्ड थाई स्ट्रीट फूड। पहले लंच करते हैं, उसके बाद आई वांट टू ट्राई वन ऑफ द आइसक्रीम्स हियर। Yeah, same order. Okay. But can you put more mushroom in that? I love mushroom. Okay. Okay. Thank you. अब मुझे भी नहीं पता मैं कितने वीडियोस बना चुकी हूँ थाईलैंड में, लेकिन हर वीडियो में ये बात एक बार ज़रूर कहती हूँ कि थाईलैंड के लोग ना, I'm gonna miss them a lot in the sense that इतने प्यारे लोग हैं ना, जब देखो तब स्माइल करते रहते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं इनको रात को पूछ के गई थी कि इफ़ आई कम टुमारो अगेन विल यू प्रिपेयर द सेम थिंग फॉर मी। मुझे लगा था कि शायद मुझे भूल गए होंगे। मैं काउंटर पे जाके ऑर्डर दे रही थी, तो दैट स्टाफ वाज नॉट नोइंग मी एनीवे बिकॉज शी डिड नॉट सी मी। बट जिन्होंने मुझे कल ये चीज़ बना के दी थी ना, सेम लेडी केम एंड शी वाज स्माइलिंग एट मी एज वेल, लाइक या सेम ऑर्डर। आई एब्सोल्युटली लव मशरूम। क्योंकि यहाँ पे ना एक एक बाइट की वैल्यू मैं समझ रही हूँ। आपके मन का खाना अगर आपको मिल गया, नथिंग लाइक इट। फूड वाज सो गुड। नाउ इट्स टाइम आइसक्रीम। आई टेक कोकोनट। $70 बात का सिर्फ आइसक्रीम है। अगर आप ये कोल लेते हो तो 15 बात एक्स्ट्रा है, 85। ऑलमोस्ट 250 रुपये की आइसक्रीम है ये। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ पुकेट के जो सबसे ज़्यादा विंटेज वाइब एंड ऑल। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स, ब्लॉगर्स घूम रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द चार्म ऑफ पुकेट ओल्ड टाउन। इट्स अमेजिंग। सरप्राइजिंगली सामान ना यहाँ पे मतलब टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी खराबी से सस्ती हैं चीज़ें। गोलगप्पे। So I came for Siam Naramit's show। ये सबसे महंगी चीज़ है जो मैं करने जा रही हूँ आज। तो 2900 बात का कुछ है। टिकट मुझे मिल गई है। टिकट का प्राइस है 2400 बात। तो अभी मैं जा रही हूँ शो के लिए। मतलब ओनली थिंग इज़ अंदर ना विलेज है, नागा कल्चर है, वो सब के वीडियोस मैं बना सकती हूँ।
लेकिन जो एक्चुअल शो टाइम है ना, जस्ट 8:30, उस शो का मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो मैं उसको खुद ही एंजॉय करूँगी। फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे मेनली 3 चीज़ें हैं। एक तो थाई विलेज है, नागा कल्चर। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नागा कल्चर। एंड देन यू हैव द क्लासिकल परफॉर्मेंस का आप वीडियो नहीं बना सकते हो। उसके अलावा जो भी चीज़ें आप करते हो यहाँ पे यू कैन रिकॉर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस है, बट वाइब है, लाइक टोटली डिफरेंट देन वट एवर आई हैव डन इन थाईलैंड सो फार। या थाईलैंड में मैं अभी तक गांव नहीं गई हूँ कहीं पे भी। चलो अच्छा, एक सेटअप वाला गांव देख लेते हैं अभी। Here the lady is serving some crispy rice with coconut. 类似麦粉。 It's called cow mao. मैंने इस जगह के पूरे एक चक्कर लगा लिए है। ऑल विलेज लाइक वाइब, थाईलैंड की ट्रेडिशनल वीविंग है, वो सिखाते हैं। दे हैव ऑल द ट्रेडिशनल मास्क ऑफ थाईलैंड, कॉस्ट्यूम ऑफ द लीसू हिल ट्राइब। दिस इज कॉल्ड खाई पाम, ट्रेडिशनल नॉर्दर्न थाई डिश, beating eggs and pouring them into a banana leaf cup, then grill until cook. Does it have meat? No meat? No meat? बहुत strong है। वैसे तो मैंने अपने थाईलैंड के ट्रिप पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की है, बट ये ना मेरा one of the favorite experiences रहेगा। One of the best things I have experienced in Phuket so far. You should come here. थोड़ा महंगा है but अच्छा लगेगा। IFA 2018 Bangkok, Siam Niramat. Nice. Okay, अब come to the restaurant now। और मेरे वाले टिकट में ना उसमें dinner everything included है। क्या कॉम्बिनेशन है, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता एंड वाटरमेलन। फुकेट में ना बांग्ला रोड और पटोंग बीच के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवल यू लाइक टू डू। आप अपनी जैसी जगह ढूंढ ही लोगे। फन शो गोइंग ऑन हियर, काफी मजेदार है। Today I'm walking on the other side of Phuket Old Town. इस वाले एरिया में मेनली चाइनीज थाई लोग रहते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ Phuket Town, years ago this place used to be a hub for tin mining, और उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन एंड चाइनीज़ लोग आए in the past and they built all these mansions here. I'm staying on that side. That's the main Phuket town. So if I'm taking a walk here, I'm going to a Chinese shrine अभी एक मंदिर में जा रही हूँ। ये पार्ट बिल्कुल empty है। Barely I'm seeing any tourist here. You know why I loved Phuket town? यहाँ पे इतनी सारी like historical चीज़ें हैं ना। There is very different kind of vibe than entire Thailand. जो भी मैंने चीज़ें अभी तक देखी हैं उससे काफ़ी अलग है Phuket town. Entered the temple. This is my first time ever when I have entered a Chinese shrine.
दिस टेम्पल इज़ कॉल्ड जोई शुई टेम्पल. जोई मीन्स वाटर. तो स्टोरी ये है कि इस टेम्पल के जो सामने का एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था पुराने टाइम में. तो दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेम्पल इन ऑर्डर टू ऑनर दैट प्योर वाटर दैट विच लोकल्स को ड्रिंक. तो इस वाले एरिया में ना, एज आई टोल्ड यू, यू हैव लॉट मैनी चाइनीज़ थाई पीपल. तो जो भी चाइनीज़ इमिग्रेंट्स आए थे थाईलैंड में सालों पहले, वो टिन माइनिंग एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, दे मैरिड Thai people and now they have a Chinese Thai community. इनके रिलीजन या कल्चर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ अंदर पे ना लोग पूजा कर रहे थे. जो पूजा की जो भावना होती है ना, एंड द वे वी डू पूजा, इट्स मोर और लेस सेम इन एवरी रिलीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड. लाइक जितनी भी छोटी सी दुनिया मैंने अभी तक देखी है, उसी श्रद्धा से अगरबत्ती लेके भगवान के सामने दिया जलाना, कैंडल्स जलाना और अपने दिल की बात रखना. इट्स नाइस. माई फर्स्ट टाइम एट अ चाइनीज़ श्राइन. टेंपल के बाहर मैं आ गई हूँ और अब मैं वापस से जो पुकेट टाउन का जो टूरिस्ट वाला एरिया है वहाँ जाती हूँ. ऐसे एक चीज़ मैं कह दूँ, पुकेट नहीं बोलते इसको, पुकेट बोलते हैं. इट्स पुकेट, इट्स पीपी आइलैंड, नॉट फीफी आइलैंड. Okay, I managed to find the market. It's called चिलवा मार्केट. मेरे हॉस्टल से यहाँ तक आने में मुझे ग्रैब ऐप पे 65 बार देना पड़ा. And it looks like a big market. This is not exactly a weekend market, but it stays from Monday to Saturday. शाम को 5 बजे ये मार्केट लगती है और 11 बजे रात तक होती है. मेरे अंदर का वो जो शॉपिंग वाला कीड़ा है वो जाग चुका है. All the funky stuff I can see here. How much is this? 180. Wow, this is cool. The stuff at this market is much cheaper than anything I had seen in Bangkok. So now I understand the craze of weekend markets. Definitely so many items here which you can purchase, and also prices are cheaper than any of the markets I have visited in Bangkok. I did purchase a few things here, काफ़ी सस्ते में, like 250 बात की shopping की है मैंने. What's your name? Tom. Tom. You want to say anything to people in India? India is a big country. Yeah, big country. I know, big country. Yeah, you been to India? Have you been to India? No, I No? never been there. Okay. Thank you. Someday. Someday. Tom asked me, where are you from? I said, I'm from India. कहता है, big country. फिर शायद से मेरा ये माइक देखा होगा. कहता है, are you an influencer? I said, yes. कहता है, big influencer. I said, no, small influencer. Such lovely funky t-shirts. एक दो तो खरीद लेती हूँ. ये पे की पड़ेगी, ये 200 बात है तो इंडिया में 500 की. अभी भी देखती हूँ. लाइक डेफिनेटली आई कैन बाय सो मेनी थिंग्स, क्योंकि वैराइटीज़ तो बहुत है.
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लगेज अभी भी बहुत जगह घूमने आए तो लगेज की एक प्रॉब्लम है। सेकंड, मैं सिर्फ वही चीज़ें लेना चाह रही हूँ कि जो मुझे इंडिया में ना मिले, क्योंकि मोर और लेस ना प्राइस दिल्ली जैसे शॉपिंग के ही है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मार्केट घूम चुकी हूँ मैं एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल। शिट, माई फेस लुक्स लाइक ए रोस्टेड चिकन। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। एनीवे, ये जो मार्केट्स है ना यहाँ थाईलैंड के, इवन इफ़ यू आर नॉट कमिंग फॉर शॉपिंग है ना, यू शुड कम फॉर द एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हो देन तो यू आर इन हेवन। बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू विल एन्जॉय ईटिंग। आई डिड लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, सम रैंडम स्टफ आई बॉट। तो अब मैं भी वापस से हॉस्टल जा रही हूँ एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू मोर इन पुकेट। मैं पुकेट टाउन में हूँ। चलते चलते यू आर गोइंग टू सी सच टेम्पल्स। ये पूरा का पूरा टाउन ही इतना आर्टिस्टिक है। यू सी ऑल दोज म्यूरल्स ऑन द वॉल, ग्राफिटी म्यूरल्स, देन स्ट्रीट लाइट। वैसे मैं अभी जिस पार्ट में चल रही हूँ पुकेट टाउन के, ये पहले रेड लाइट एरिया हुआ करता था। दिस इज़ कॉल्ड सोई रोमानी। काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट है पुकेट टाउन का। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने टूरिज़्म की ताकत को पहचाना एंड दे स्टार्टेड पेंटिंग ऑल देयर हाउसेज इन डिफरेंट कलर्स लाइक पिंक, ब्लू, रेड। दैट्स व्हाई दिस प्लेस बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। एंड यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे। आई थिंक इट्स टाइम कि मैं एक फ्रिज मैग्नेट ख़रीद लूँ। मैं पोस्टपोन कर रही थी कि मैं जब ट्रिप का एंड होगा तभी ख़रीदूँगी, बट यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा है। 100 बात में 3 मिल रहे हैं। 100 बात इज़ 250 रुपये लगभग, और 250 रुपये में 3। इससे सस्ता आई डोंट थिंक सो आई विल गेट इट, सो आई एम गोना बाय। टैक्सी लेती तो ऑलमोस्ट 400 बात लगता। पटोंग तक जाती हूँ, वहाँ से देखूँगी क्या करना है हॉस्टल तक पहुँचने के लिए। सो मैं पहुँच गई हूँ पटोंग और यहाँ से बिल्कुल पास में मेरा हॉस्टल है। आई एम स्टेइंग हियर ओनली फॉर 1 नाइट। कल सुबह मैं फ़्लाइट लेके नॉर्थ थाईलैंड जा रही हूँ, चिंग माई। सो अ कपल ऑफ थिंग्स, पुकेट टाउन और पटोंग बीच, ये 2 जगह है जहाँ पे आप रह सकते हो इफ़ यू कम टू पुकेट। पुकेट टाउन इज़ मोर लाइक क्लासी वाइब, थोड़ा कम भीड़, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट दैट्स वेयर आई वाज स्टेइंग क्योंकि मुझे शांत जगह ज़्यादा पसंद है। पटोंग बीच इज़ द प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम इंडिया दे स्टे, क्योंकि यहाँ पे पार्टी वाइब ज़्यादा है। तो अभी मैं जा ही रही हूँ देखने के लिए कि क्या है पटोंग बीच और बांग्ला रोड पे। मैं यहाँ पे आई एक बस में, 40 बात दिए मैंने पुकेट टाउन से यहाँ तक आने का, और अगर मैं ग्रैब या बोल्ट ऐप से टैक्सी लेके आती तो 400 से 500 बात मुझे देना पड़ता। सो आई सेव द मनी। So guys, this is Patong Beach. It's quite famous, especially for people coming from India. अभी आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे I'm not finding anything exciting. वो इसलिए भी क्योंकि अभी शाम हुई नहीं है 100%. तो शाम के टाइम में आगे वाइब अलग होगी, बट भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मुझे somehow अभी भीड़ में बैठने का मन नहीं कर रहा। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आई एंटर्ड अ शॉप हियर, स्टोर। यहाँ पे सारे ब्रांड्स के ना फर्स्ट कॉपी हैं।
I don't know why there is so much hatred towards Indian people in this particular area. मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ. अब कुछ पसंद नहीं आएगी तो आप नहीं लोगे ना. तो यू नो हर कोई गाली बक रहा है. इंडियन पीपल, येस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग. एक तो इतना फ़नी था, एक बंदा वो नेपाली था एंड ही सेड सेम थिंग, इंडियन पीपल दे विल नॉट बाय एनीथिंग. एंड आई न्यू ही वॉज अ नेपाली बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड नेपाली लैंग्वेज. मैंने उसको बदले में 4 गालियाँ मैंने भी सुना दी. एक्चुअली मैं ये काम करती नहीं, लेकिन द वे ही सेड ना, आई फेल्ट सो एंग्री. लाइक हाउ कैन यू टॉक टू समबडी लाइक दैट. भाई आप 200 की चीज़ का 2000 मांगोगे तो मैं तो बार्गेन करूँगी ही ना. इंडिया, इंडिया कहाँ से? हम लोग यूपी से है मैम. यूपी से हो? हाँ जी. आप कहाँ से हैं मैम? मैं वैसे बिहार से हूँ, रहती हूँ दिल्ली में. अच्छा जी. इंडियन लोगों को इतना गाली क्यों देते हैं यहाँ पे? कौन? ये दुकान वाले लोग. नहीं मैम, बात ऐसी है, देखिए हर इंडियन तो ख़राब नहीं होते हैं. हाँ. मतलब अपना इंडियन का क्या है रूल है कि मतलब वो थोड़ा चिक चिक करते हैं, हर चीज़ में उनको डिस्काउंट चाहिए. वो ज़्यादा वही लोग हैं कि मतलब यहाँ के लोग मतलब उन लोगों को पसंद नहीं करते. लेकिन मुझे लगता है इंडियन लोग ही एक्चुअल शॉपिंग करते हैं, बाकी तो लोग खर्चा कहाँ करते हैं. इंडियन भी शॉपिंग करते हैं, सब लोग शॉपिंग करते हैं. लेकिन इंडियन का क्या है, वो शॉपिंग नहीं करते, नहीं वो खरीदते हैं. लेकिन उनको क्या है कि मतलब अगर 500 का है तो वो सीधे जाके बोलते हैं 200. अच्छा, इसलिए तो बार्गेन. प्रॉब्लम जाके होती है. ओके हाँ जी. ठीक है. आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है, हम कौन लोगों सा? का बस यही पास में ही है, इंडियन तंदूरी प्लेस. ठीक है, मैं लौट के आती हूँ जी, फिर जी. उसके बाद. आपका हाँ जी, नाम? मेरा नाम कुलदीप है. कुलदीप जी. हाँ जी. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. आप यूट्यूब बनाते हैं मैम? हाँ जी, अच्छा, तो अपना यूट्यूब का वो दे दीजिए. हम लोग देसी गर्ल ट्रैवलर. कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ मुझे 10-11 साल हो गए. अच्छा, हाँ जी. मन लगता है? हाँ जी, बढ़िया. मतलब जॉब के लिए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ के लोग जो है भेदभाव नहीं रखते हैं. हाँ, वो तो देखा मैंने. हाँ जी. ठीक है, जी. थैंक यू कुलदीप Thank जी. you. Thank थैंक you, यू. एनीवे, छोड़ो, वाइब एंजॉय करते हैं पुकेट का. In war, there's never an option to यहाँ पे आई कैन सी भीड़ भाड़ सब कुछ चलते हैं भीड़ का एक हिस्सा बनने के लिए. भाई ये जो जगह है ना, ये मेरे लायक तो नहीं है. लाउड म्यूजिक, पार्टी एंड ऑल द प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रोड, बांग्ला रोड. मैं बस यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करती हूँ जस्ट टू सी व्हाट इज़ हियर एंड देन आई विल लीव. लोग आगे पूछ रहे हैं पिंग पोंग शो. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ पे लोग आते हैं. टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, आई कांट टॉक अबाउट इट. तो मैं जिस चीज़ के तलाश में पटोंग रहने के लिए आई थी वो पूरा हुआ. आई मैनेज टू फाइंड ऑन इंडियन रेस्टोरेंट. वैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं और मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ से बहुत ही पास ये रेस्टोरेंट है. इट्स कॉल्ड दिल्ली दरबार. मैंने यहाँ पे जो भैया मिले उनको बोला प्लीज़ एक पराठा बना दो, और बहुत अच्छा सा पराठा. आई हैव सम सैंडविच फ्रॉम 7-Eleven. एक्चुअली कल मैं भूखी रह गई थी पूरे दिन और रात, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला था. सो आई ऑलवेज कीप एन एमरजेंसी फूड. एनीवे गाइस, सो अब मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ पुकेट का. जस्ट टू सम इट अप, 2 चीज़ें हैं कि अगर आप पुकेट आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है. या तो आप पटोंग में रुको जहाँ पे आपको बीच है, बांग्ला रोड और ऑल दोज टूरिस्टी, यू नो, ऑल दोज नाइट लाइफ. I don't know what to say about that, prostitution and everything, you know, in this particular area. But when you go to Phuket town, that's more classy, good vibe, good energy. So I liked Phuket town more, and that is the reason I stayed there for 4 nights. And I came to Patong आज ही, बस एक रात के लिए, वो भी मैं दोपहर में पहुंची थी. कल सुबह I'm taking a flight and going to Chiang Mai. एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी ना कि Phuket टाउन में people were very respectful towards Indians. Like मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑल्सो कि एक बंदी मुझे मिली, वन थाई चाइनीज़ वुमेन, एंड शी वॉज फीडिंग मी एवरी डे. लाइक बहुत प्यार से, इसके रेस्टोरेंट में जब भी मैं जाती थी बहुत प्यार से खाना बनाती थी. एंड ये वाले रोड पे ना, ये पटोंग बीच वाला जो एरिया है, पटोंग मार्केट,
एवरीबडी वॉज हेटिंग मी, लाइक किसी भी दुकान में मैं जा रही हूँ तो दे आर हेटिंग, एंड बहुत तो कमेंट भी मारा, इंडियंस यू विल नॉट बाय एनीथिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है चलो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस स्पेशली मैन come and do a lot of drama. Please don't hate me for that. I have observed it myself. But हाँ, वो उनका जो जनरलाइज करने का तरीका था ना, that I did not like it. People are little racist towards Indian in this particular area. But ठीक है यार, हमको कौन सा यहाँ पे घर बसाना है, कुछ दिनों के लिए आए हैं, घूम घाम के चले जाएंगे। So yes, today I complete almost 18 to 20 days. Actually मुझे याद नहीं है मैं कितने दिन हो गए मुझे थाईलैंड में, और कल सुबह फ़्लाइट लेके मैं जा रही हूँ नॉर्थ थाईलैंड, चियांग माई, एंड आई एम गोना बी स्टेइंग देयर फॉर अनदर 15-17 डेज़। तो अभी भी आधी से ज़्यादा ट्रिप बाकी है। सो या आई होप यू गाइज आर हैविंग फन वॉचिंग माई थाईलैंड सीरीज़। आई डोंट नो ये कंटेंट कितना परफेक्ट बन रहा है, बट यू नो इंडिया में व्लॉगिंग करना बहुत अलग है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव अ सेंस ऑफ एक बोलते ना कम्फर्ट, और ऑल्सो मुझे लगता है यार मैं घर पे ही हूँ, कुछ भी हुआ तो आई कैन ऑलवेज टेक अ फ्लाइट एंड गो बैक होम। यहाँ भी ऑल्दो मैं इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बट एक दूसरी कंट्री में हूँ, यू नो, तो सारी चीज़ें खुद से फिगर आउट करके, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करके उसमें भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट दैट टू डूइंग एवरीथिंग सोलो, सो अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर श्योर, बट कोई कंप्लेन नहीं है, इट्स अ लर्निंग फॉर मी। और कहीं ना कहीं से मुझे इस चीज़ की शुरुआत करनी थी। इससे पहले मैं 8-9 कंट्रीज़ जा चुकी हूँ, लेकिन वो हमेशा ऑर्गेनाइज टूर होती थी, लाइक ट्रैवल एजेंसी से, टूरिज़म बोर्ड से एंड ऑल, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट द लॉजिस्टिक्स। मेरा फोकस सिर्फ व्लॉग होता था, बट यहाँ पे व्लॉग तो एक है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आई हैव टू फिगर आउट। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी, एंड या आई होप यू गाइज विल स्टिक अराउंड टिल द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। बस अब मैं खाना एंजॉय करती हूँ, एंड आई सी यू गाइज इन नॉर्थ थाईलैंड। पहाड़ों से थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा सुकून की लाइफ जिएंगे, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा हो गया ये साउथ थाईलैंड, बीच आइलैंड, भीड़ भाड़, शॉपिंग एंड ऑल, बस डन। अब नॉर्थ थाईलैंड जाके मुझे चिल करना है। I'll see you guys in the next episode. Until then, like, comment, share and subscribe.